हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम फीवर है। यस स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट कहलाता है क्यों? The cells exchange O2, CO2 directly with the air in the tubes. The tissue exchange O2 and CO2 directly with the coelomic cavity. The tissue exchange oxygen and carbon dioxide directly with the air outside through the body surface. Tracheal tubes exchange oxygen and carbon dioxide then exchange with the tissue. तो सबसे convenient और सबसे करीब आंसर जो है आपका, that's a D. Okay. Regarding the function of our respiratory system, mark the wrong entry. ये ज्यादा ध्यान दीजिएगा. Mark the wrong entry. Humidifies the air, warm up the air, diffusion of gases, clean up the air. तो diffusion of gases is the wrong entry. तीसरा क्वेश्चन, a person is suffer punctures in the chest cavity in an accident without any damage to the lungs. Its effect could be reduced breathing rate, rapid increase in breathing rate, no change in respiration, cessation of breathing. क्या कहलाएगा? तो cessation of breathing is the correct one. It is known that exposure to carbon monoxide is harmful to animals because हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक होती है. क्यों होती है? It reduces CO2 transport, it reduces oxygen transport, it increases CO2 transport, it increases oxygen transport, it reduces oxygen transport because it has a much more affinity for the hemoglobin as compared to the oxygen. Mark the true statement उन्होंने बोला है, among the following with reference to normal breathing. Inspiration is passive process where the expiration is active. Inspiration is active process whereas the expiration is passive. Inspiration, expiration are active process. Both are passive process. तो कौन सा सही है आपका? Inspiration आपका active process है and expiration is the passive process है. याद रखिएगा इसको. A person breathe in some volume of air by force inspiration. After having a force expiration, this quantity of air taken in is total lung capacity होती है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है. तो याद रखिए वाइटल कैपेसिटी होती है जब फोर्सबल इंस्पिरेशन के बाद में कोई चीज़ हम लोग एयर जो होते हैं हम लोग अंदर लेते हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन. लास्ट वाला जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा. हायर पीएच होनी चाहिए, हायर टेम्परेचर होना चाहिए, लोअर PCO2 होना चाहिए, हायर पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर होना चाहिए, या लोअर पार्शियल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए. क्या होनी चाहिए? तो याद रखिए जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखिए हायर टेम्परेचर नहीं बल्कि लोअर टेम्परेचर होना चाहिए. मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस. करेक्ट पेयर, अच्छा क्वेश्चन है. External and internal intercostal muscle, diaphragm and abdominal muscle, diaphragm external intercostal muscle, diaphragm and intercostal muscle. ये सुना सुना लग रहा है ना? तो diaphragm and intercostal muscle takes part in the normal breathing of humans. Incidence of emphysema, जब किसी को emphysema हो जाता है, सिगरेट पीने से होता है. Respiratory disorder is a high in cigarette smoker. In such a cases क्या होता है? The bronchioles are found damaged, the alveolar walls are found damaged, the plasma membrane is found damaged, the respiratory muscles are found damaged. तो याद रखिए the alveolar walls are found damaged. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरनल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. Respiratory process is regulated by certain specialized center in the brain. One of the following center can reduce the inspiratory duration upon stimulation. Medullary inspiratory center, pneumotaxic center, apnostic center, chemosensitive center. याद रखिए pneumotaxic center which is present in the pons. pons में मौजूद होता है, याद रखिएगा. कार्बन डाइऑक्साइड डीएसोसिएट फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन व्हेन, ठीक है, कब डीएसोसिएट हो जाएगी? पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इज हाई एंड PO2 इज लो. PO2 इज हाई होगा एंड PCO2 इज लो. PCO2 एंड PO2 आर इक्वल होंगे, नन ऑफ द अबव होगा. और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी बातें लंग्स की हैं, ठीक है. पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो होगा वो हाई होगा और PCO2 जो होगा वो लो होगा, ठीक है. तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डीएसोसिएट हो जाएगी.
इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, स्पायरोमीटर के जरिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी मार्क द करेक्ट आंसर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है आईसी जो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी जो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो आपका होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसके कोड्स दिए गए हैं, बहुत सारे कोड्स दिए गए थे, इसमें से आपको करेक्ट मार्क करना और इनकरेक्ट मार्क करना है। ये वाला जो है ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये वाला जो है आपका करेक्ट है, तीसरा वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट है और चौथा वाला आपका ये करेक्ट है। इस तरीके से पिकअप करना था आपको, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डीएसोसिएशन कर्व विल शो द राइट शिफ्ट, किधर राइट शिफ्ट इन केस ऑफ हाई PCO2, हाई PO2, लो PCO2 एंड लेजर अमाउंट में H+ आयन का कंसंट्रेशन। अब आपको डायग्राम देख के ही पता चल गया होगा, ठीक है, ये हो गई आपकी लेफ्ट शिफ्ट, इसमें आपको कम पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर चाहिए है, लेजर अमाउंट में आपको, ठीक है, H+ आयन चाहिए है, 2,3 DPG चाहिए है, टेम्परेचर भी आपको लो चाहिए है और राइट शिफ्ट आपका होना है इधर। तो जहां पे आपका हाई PCO2 दिख रहा है तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ओके, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा जरा ध्यान से। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल्स दिए गए और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए गए उनके, अर्थवर्म है, इंसेक्ट है, फिशेज है, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही कोड इसके लिख दिए हैं ताकि आसानी हो जाए आपको, ताकि सिलेक्ट करना आपको आसान हो जाए। वैसे सिंपल है। अर्थवर्म किससे करता है भाई आपका, ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है वो। तो इंसेक्ट आपके किससे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, इंसेक्ट ट्रेकियल रेस्पिरेशन। फिशेज हम दुनिया को पता है कि गिल से करती हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स बचे हैं तो ये लंग से करते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। 8 मिनट में हम लोग ने अपना ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर याद से अगर वीडियो पसंद आया हो। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।